Success Mantra. We shape future. Hello students and welcome to Success Mantra. My name is Ankit Sharma, your mentor for logical reasoning. और आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट. बिलीव मी फ्रेंड्स, जो हम लोग ये मैराथन सीरीज लेकर आए हैं, इनमें अगर दो सबसे इंपॉर्टेंट एंड ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बल्क ऑफ मार्क्स दिला सकते हैं. वन ऑफ देम इज सीटिंग अरेंजमेंट एंड द अदर वन इज पजल. So please go through these two topics in particular very carefully. Seating arrangement आखिर क्या है? Seating arrangement में there are some people who are sitting around a circle or in line in a rectangular shaped structure or even in a triangular structure. So basically in seating arrangement we come across the following sets of questions. So types of seating arrangement में जो सबसे पहला आता है that is the circular seating arrangement in which the people are sitting around a circular table. Now they can be facing inward or outward or even a mix of both of them. इसके बाद जो अगला है that is linear seating arrangement in which the people are sitting in line facing unidirection or even bidirectional. Also the people could be sitting in one line known as one line seating arrangement or the people could be sitting in two lines known as dual row seating arrangement. हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे. The next very important one is the rectangular seating arrangement in which the people are sitting around a rectangular table. Please also make a note of this that square is also nothing but a form of rectangle. Alright, so when we are doing square arrangement, we already are doing a rectangular arrangement. And the last but not the least is the miscellaneous form of seating arrangement in which the arrangements which are other than circular, linear and rectangular comes. For example, what about a triangular form of seating arrangement? Now such kind of seating arrangements we would be doing over here. So we are going to cover a total of 5 questions. 1 circular, 2 linear. In linear 2, why? Because one is the single row seating arrangement and the other one is dual row seating arrangement. Then number 4th is the rectangular seating arrangement and number 5 is the triangular seating arrangement. So here we go without any further delay. To begin with, let us start with the question of the circular seating arrangement. So now here is the question. Alright, and now please see how to approach such kind of questions. The question says that 8 persons are sitting around a circular table and facing the center. तो basically 8 लोग हैं, वो एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं और कहाँ देख रहे हैं? टुवर्ड्स द सेंटर. तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ. सो आई हैव ड्रॉन अ सर्कल. इस सर्कल के अराउंड 8 लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सभी कहाँ देख रहे हैं? टुवर्ड्स द सेंटर. इनका फेस टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इसलिए मैंने कुछ इस तरह से इनको ड्रॉ कर दिया है. लेट मी ड्रॉ वन मोर डायग्राम. व्हाई आई एम ड्रॉइंग वन मोर डायग्राम यू विल गेट टू नो वेरी सून. बेसिकली 2 डायग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई ऑल्टरनेटिव डायग्राम बन रहा हो तो हम उसको भी अकोमोडेट कर पाए. नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर मैनर, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो नाउ हियर वी गो. तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं. तो हमने बना दिया सर्कुलर टेबल. 8 लोग हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं. अब जरा यहां से पढ़ो. नाउ फ्रॉम हियर स्टार्ट्स द रियल लाइन. इट सेज A sits second to the left of D, D who sits third to the left of E. तो A जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D है. ठीक है, तो आपको जहां मर्जी आप D को प्लेस कर दो. मानो मैंने यहां प्लेस कर दिया. अगर मैंने D को यहां प्लेस कर दिया तो A sits second to the left of D, first to the left and second to the left यहां हो जाएगा. So we have done A sits second to the left of D. But D के बारे में क्या कहा जा रहा है? D who sits third to the left of E. So if D sits third to the left of E, E will be occupying this place because E के first, second and third left पर D है and D के first and second left पर A है. I hope it is very clear.
आगे क्या कहा जा रहा है, C sits third to the right of G. So suppose I don't know there is a person G and इसके 1, 2 and 3rd right पर C है. So C sits third to the right of G, but G is not a neighbor of E. Point to be noted, G who is not a neighbor of E. तो G को आप ना यहां पे रख सकते हो, ना G को आप यहां पे रख सकते हो. Alright, आगे आपसे ये भी कहा जा रहा है H sits third to the right of B. H sits third to the right of B, but B कहाँ है? B who sits second to the right of G. B who sits 1 and 2 second to the right of G. तो B की पोजीशन पता चल गई. अगर B की पोजीशन पता चल गई तो आप H की भी इजीली बता सकते हो. H sits third to the right of B. अब ये B है. H sits 1, 2 and third to the right. And now we have to adjust this in this diagram. अब आप खुद सोचो ये कैसे पॉसिबल है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, काइंडली पे अटेंशन. अब G को हम यहां पर और यहां पे तो नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज ऑलरेडी समवन हु इज देयर, और G कैन नॉट बी अ नेबर ऑफ E, तो हम यहां भी नहीं कर सकते. तो अब हम G को अगर यहां करें, यहां पर, तो G को यहां तो कर दोगे बट G के सेकेंड राइट B यहां नहीं कर सकते ना बिकॉज E इज देयर, तो हम G को यहां भी नहीं कर सकते. मान लो हमने G को यहां कर दिया. अगर आपने G को यहां किया तो देखो क्या हो सकता है. आप G के सेकेंड राइट यहां पर B कर लोगे, ठीक है. अच्छा, B के इमीडिएट राइट पर C भी कर लोगे, एंड C के फर्स्ट एंड सेकेंड राइट, C के फर्स्ट एंड सेकेंड राइट पर H भी आ जाएगा. तो यानी ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, यानी G को हम यहां पर रख सकते हैं. बट अब अगर मैं G को यहां रखना चाहूं, अगर मैं G को यहां रखना चाहूं, सो जस्ट टू समराइज दिस, अगर मैं G को यहां रखना चाहूं तो अब क्या होगा. सो लेट अस सी. अब मैं G को यहां रख रहा हूं. अगर मैं G को यहां रखूंगा तो G के सेकेंड राइट पे, G के सेकेंड राइट पे B तो आप यहां कर दोगे, बट B के इमीडिएट राइट पे C आप यहां नहीं कर पाओगे. सो इवन दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो चलिए अब तो हमारा काम आसानी हो गया. तो अब जब हमारा काम आसान हो गया तो ठीक है, अब हम G को यहां से भी हटा देते हैं, यहां से भी हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि G कहां पर है. अब G एक ही जगह हो सकता था और वो था इस प्लेस पर. क्यों? क्योंकि जैसे ही G को यहां करोगे, G के सेकेंड राइट पर आप B को कर लोगे, फिर B के इमीडिएट राइट पर यहां पर C हो जाएगा. सो यस, नाउ वी हैव टू रिमूव द G फ्रॉम हियर. नाउ वी हैव टू रिमूव द G फ्रॉम हियर, क्योंकि G की पोजीशन तो हमें अब क्लियरली पता चल गई. तो अब जब आपने G को यहां रखा, सेकेंड राइट B हो गया, B के इमीडिएट राइट पर C हो गया, एंड C के फर्स्ट एंड सेकेंड राइट, C के फर्स्ट एंड सेकेंड राइट पर यहां पर कौन हो गया, H हो गया. आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो देखो धीरे धीरे अब कंप्लीट अरेंजमेंट कंट्रोल में आ चुका है. बट अभी भी एक पर्सन है जो नहीं आया. कौन है वो पर्सन जो अभी तक नहीं आया? आपको पता है ABCDEFGH आर द 8 पर्सन्स. उनमें से कौन यहां नहीं दिख रहा? आप चेक कर लो. A है, B है, C है, D है, E है, F इज मिसिंग. तो F को यहां रख दो बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस लेफ्ट आउट फॉर F. एंड देन दिस इज द कंप्लीट डायग्राम. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट डायग्राम है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो अब क्वेश्चन हो गया. अब इसमें आपको ये परेशान नहीं होना है. अब जब मैंने शुरू किया था तो मैंने D को यहां रखा था. मान लो आपने D को यहां रखा है और अब आप सोच रहे हो कि सर अब हमारा डायग्राम फिर गलत हो जाएगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैंने D को यहां रखा तो मेरा स्ट्रक्चर ऐसे बना. अगर आपने D को यहां रखा होता तो आप क्लॉकवाइज देखो. मेरे D के क्लॉकवाइज GAFHE है, तो आपके भी D के क्लॉकवाइज जैसे यहां पे GAFHE है तो यहां पे भी GAFHE होगा. देन E के बाद CBD है तो यहां पे भी E के बाद क्लॉकवाइज देखोगे तो CBND है. तो ये भी बिल्कुल सेम डायग्राम है. तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने D कहां रख के शुरू किया और आपने D कहां रख के शुरू किया. हाँ, अगर कुछ मैटर करता है तो वह रिलेटिव पोजीशन. यहां पे भी D के क्लॉकवाइज जो एलिमेंट है तो यहां भी D के क्लॉकवाइज वही एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में होने चाहिए. बस इतना ही फर्क है. जहां तक अब इसके सवाल हैं, बच्चों को ये लगता है कि लेंदी एक टॉपिक नहीं. आप एक बार इसको कर लेते हो तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलता, 4 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं. वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं आइए देखते हैं. सो नाउ लेट अस फोकस ऑन दोस क्वेश्चंस. चलिए अब आते हैं यहां पर.
इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हु सिट्स बिटवीन डी एंड सी। डी एंड सी के बीच में कौन बैठा है? तो आप देखो, आप बताओ डी एंड सी के बीच में कौन बैठा है? ओके, बी इज द वन। डी एंड सी के बीच में कौन बैठा है? बी इज द वन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली बी, केवल बी बैठा है। नेक्स्ट चेक करो, हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। सेकेंड टू द राइट ऑफ ई कौन है? तो ई है, इनवर्ट फेसिंग था, तो सेकेंड राइट एफ। सो द करेक्ट आंसर इज एफ, गिवन इन ऑप्शन बी। एक बार कर लोगे फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एच? तो अब एच से देखोगे तो ए कहां पर है? एच से देखोगे तो ए इज फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड टू द राइट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टू द राइट आपको यहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। सो दैट इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे? ऑड वन आउट बताना है। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक, एक जैसे और एक थोड़ा सा अलग है। वो जो थोड़ा सा अलग है वही आंसर है। तब आप ध्यान से देखो, सी एच, सी के सेकेंड राइट में एच है। एफ जी, एफ के सेकेंड राइट में जी है। डी ए, डी के सेकेंड लेफ्ट में ए है। एंड बी ई, बी के सेकेंड राइट में ई है। तो इन ऑप्शंस ए बी एंड डी, अब चेक करो, सी के सेकेंड राइट पर एच है, एफ के सेकेंड राइट पे जी है, बी के सेकेंड राइट पर ई है, बट डी के सेकेंड राइट पे नहीं, सेकेंड लेफ्ट पर ए है, एंड देयरफॉर इट इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको बताना है, ये फिगर है, यही हमने, ये फिगर है, यही हमने बनाया था, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में, जस्ट गो थ्रू इट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेकंड पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो अब जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, अब कह रहे हैं इनमें से किस ऑप्शन में द सेकंड पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन? क्या सेकंड पर्सन बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है? नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ डी है। क्या सेकंड पर्सन एच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है? चेक करो, नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ ई है। क्या सेकंड पर्सन ए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ है? नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ एफ है। तो ये तीनों ही नहीं हो सकते। तो दैट मीन्स व्हाट कुड बी द राइट आंसर? नाउ इन दिस केस द राइट आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अगेन ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट ओनली, बिकॉज आज हम वो टॉपिक कर रहे हैं, बट पिछला सर्कुलर था, ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। लोग लाइन में बैठे हैं, सिंगल रो सीटिंग अरेंजमेंट है। कैसे? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 10 पीपल ए टू जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 लोग हैं जो एक रो में बैठे हैं और साउथ देख रहे हैं। बट अब जब एक ही रो में और साउथ देख रहे हैं, तो चलिए अब मैं इसको जरा सॉल्व करता हूं। सो दीज आर द 10 पीपल सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक केस और बना लो, 2 केस बना के चला करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कोई पर्सन नॉर्थवर्ड्स ऐसे देख रहा है तो उसका लेफ्ट एंड ये होता है, राइट एंड ये होता है। बट अगर कोई इसके ऑपोजिट है इस तरह से, तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जस्ट ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे फॉर राइट नाउ अगर आप देखोगे, आपका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट सेम है, आपका राइट और मेरा राइट सेम है। एज ऑफ नाउ तो ऐसा है, बट द मोमेंट आई अबाउट टर्न, आपका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट बिल्कुल अलग है, आपका राइट और मेरा राइट बिल्कुल अलग है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो चलिए अब जरा इसको आगे पढ़ते हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि 10 persons आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग साउथ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, बट नाउ सी क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है G sits 5 places away from I. Now what does this mean? G sits 5 places away from I का मतलब अगर G इधर है तो I is 1 place away, 2 place away, 3 place away, 4 place away and 5 place away. So G is 5 places away from I का मतलब बीच में 4 ही places हैं, because away इस movement को कहते हैं 1 place away, 2 place away, 3 place away, 4 place away, 5 place away. हमें ये भी नहीं पता कि कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। J sits 5 places away from I के बाद F sits to the right of J. F sits to the right of J. अब आपको पता है कि सब लोग साउथ फेसिंग है, तो ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा
और ये राइट हैंड हो जाएगा। एंड अब अगर ऐसा हो जाएगा तो जब क्वेश्चन कह रहा है f sits to the right of j, अब ये j है एंड f sits to the right of j ये होगा, f sits to the right of j ऐसा होगा। बट एक चीज बहुत ध्यान से देखना, f sits to the right of j का मतलब f राइट पर तो है, बट किस पोजीशन पर राइट है, इमीडिएट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है, ये नहीं क्लियर है। तो ठीक है, अभी देखते हैं कि किस पोजीशन राइट पर है। आगे ये कहा जा रहा है f sits to the right of j के बाद c sits fifth to the right of d। अब मान लो कि ये d है, तो c sits 1 2 3 4 एंड फिफ्थ टू द राइट, c sits fifth to the right of d हो गया। आगे a sits to the right of h, a sits to the right of h। अब h के राइट पर a है, किस पोजीशन पर राइट है ये हमें नहीं पता। आगे बढ़ते, a sits to the right of h के बाद two persons are sitting between e and I, दो लोग हैं e and I के बीच में। तब दो लोग हैं e and I के बीच में, तो मैंने ऐसे यहाँ ड्रॉ कर दिया कि दो लोग हैं e और I के बीच में। अभी तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है जिसे हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करना शुरू कर दे। वी आर वेटिंग फॉर द सेम। और आगे बढ़ते हैं, टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन e एंड I के बाद b सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम j, b सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम j। मानो कि j इधर है, तो b सिट्स वन प्लेस अवे एंड टू प्लेस अवे, क्योंकि वन एंड टू प्लेस अवे ऐसा होगा। आगे e sits third from the left hand, point to be noted, e sits third from the left hand। now left hand is this, e sits 1 2 and third from the left hand, तो e को यहां आपने कर दिया, तो यहां से हमें शुरुआत मिल गई। now we are getting the start, e sits third from the left hand के बाद four persons are sitting between e and j, four persons are sitting between e and j, so 1 2 3 and 4 persons are sitting between e and j। तो हमने कर दिया 1 2 3 एंड 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड जे। अच्छा, अब स्टार्ट कर लो क्वेश्चन करना। अब क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना, टू पर्सन्स बिटवीन ई एंड आई, सो टू पर्सन्स बिटवीन ई एंड आई, सो 1 and 2 आई कैन नॉट बी हियर, सो 1 and 2 आई विल बी हियर, तो ये भी हो गया। अच्छा, जे एंड बी के बीच में वन पर्सन इज देयर। नाउ जे एंड बी के बीच में वन पर्सन अब यहां तो नहीं हो सकता, सो नाउ जे एंड बी के बीच में वन पर्सन अब यही होगा। ओके, नेक्स्ट, जे के समवेयर राइट में f है। अब j के समवेयर राइट में f अब एक ही तरह से पॉसिबल है, वो ये है। देन द नेक्स्ट वेरी क्रूशियल थिंग ओवर हियर इज, अब आपको इनको भी ध्यान में रखना है, क्या कि h के राइट में a है, d के 1 2 3 4 एंड फिफ्थ राइट पे c है। आपने अगर d को यहां रखा तो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ राइट पे c नहीं कर पाओगे, बट अगर आपने d को यहां रखा तो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ राइट पे c कर सकते हो। सो नाउ इवन दिस इज डन। अब आपको ये देखना है कि G और I के बीच में चार लोग हैं ना, G और I के बीच में 1 2 3 and 4 people are there, so I is already there, तो 1 2 3 and 4 G यहां हो जाएगा, so even this is done। Finally H के राइट पर A है। अब H के राइट पर A रखने का केवल एक ही तरीका है, hence done, हो गया ये क्वेश्चन। तो बस इतनी सी मेहनत थी और हो गया। तो इस पूरे टॉपिक में ना आपको केवल एक ही करना है काम, और वो है कंसंट्रेट, फोकस, कंसंट्रेट एंड फोकस, दैट्स इट। कुछ भी रटना नहीं है, नथिंग यू हैव टू मग अप, जो भी कहा जा रहा है बस उतना कर दो। अब देखो, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, एंड नाउ लेट अस सॉल्व देम, इट इज सुपर इजी। नाउ हियर वी गो। हैव अ लुक एट दिस। अब ये है, इसको देखो, अब क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। अब जैसे कि आपको पता है कि दे आर फेसिंग साउथ, तो अब इनका लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है। अब आपसे कहा जा रहा है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, सो ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफ देम, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if B is related to C, if B is related to C and D is related to A, तो अब देखो B is related to C का मतलब दो लोग हैं उनके बीच में, D is related to A का मतलब दो लोग हैं उनके बीच में, then which of the following is related to E? तो E is related to क्या होगा, I, because दो लोग हैं इनके बीच में तो I होगा, but I directly नहीं given है, तो क्या कहा जा रहा है, the one who is sitting 2 places away from F। क्या I 2 places away from F है, नहीं, I is 1 2 and 3 places away from F। Next, is I the one who is fourth from the right hand? तो आप देखो ये लेफ्ट हैंड हुआ करता था, ये राइट हैंड, so is I 1 2 3 and 4 from the right hand? No।
इज आई द वन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच? नहीं, एच के 1 एंड सेकेंड राइट है, ना कि थर्ड टू द राइट. बट इज आई द वन हु इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी? यस, एब्सोल्युटली. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. तो बस एक बार सॉल्व कर लो और उसके बाद आप इजीली आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अब क्या कहा जा रहा है? अब आपसे यह कहा जा रहा है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन सी एंड द वन हु इज सिटिंग बिटवीन ई एंड जी? द वन हु इज सिटिंग बिटवीन ई एंड जी इज डी एंड सी यहाँ है. इनके बीच में कितने लोग हैं? 4 persons. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4. इजंट इट? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. सो आई होप नाउ यू आर गेटिंग कि कितना इजी हो जाता है. फाइंड द ऑड वन आउट, जो बाकियों से अलग है. फाइंड द ऑड वन आउट, जो बाकियों से अलग है. जी एंड एच. तो जी एंड एच के बीच में देखोगे 2 persons हैं. आई एंड एफ के बीच में 2 persons हैं. ए एंड जे के बीच में 2 persons हैं. बी एंड सी के बीच में 2 persons हैं. तो सबके बीच में 2 persons हैं. तो थोड़ा सा और ध्यान से देखो. जब थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो अब आपको पता है कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है. ऑलराइट. तो जी के थर्ड राइट पर एच है, आई के थर्ड राइट पर एफ है, ए के थर्ड राइट पर जे है, बट बी के थर्ड लेफ्ट पर सी है. एंड देयरफॉर इट्स द वन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. तो आई होप अब आपको चीजें समझ में आ रही है कि कैसे इनको अप्रोच करना है. इज इट वेरी क्लियर गाइस? ऑप्शन डी. फाइनली एक इसका सब क्वेश्चन और है. अब ये सब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट देखो. 2 persons are sitting between F and C. Can you see 2 persons sitting between F and C? Certainly not. Then H sits to the left of D. Now this is the left hand, this is the right hand. So is H sitting to the left? No, H is sitting to the right of D. So even this is gone. Then A sits second to the right of E. Yes, A sits first and second to the right of E. This is the correct one. Alright, and then this is the right answer. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या किया? सर्कुलर अरेंजमेंट किया, then single row seating arrangement किया. Now next will be the rectangular seating arrangement. Okay, so now let us start with the next form of seating arrangement, which is the rectangular seating arrangement. So here we go. So now let us start with the rectangular arrangement, and let me again remind you कि जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, it is already a form of rectangle. So while solving square arrangement, rectangular arrangement already gets covered. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन पढ़ो कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है. द क्वेश्चन इज टेलिंग कि देयर आर 8 फ्रेंड्स, देयर नेम्स हैव बीन गिवन L M N O P Q R and S. दे आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल. तो स्क्वायर टेबल, तो सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करो. सो मैंने क्या किया? एक स्क्वायर ड्रॉ किया. दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अनदर स्क्वायर. So 8 persons sitting around a square table in such a way that 4 of them are at the corners of the square and 4 are at middle of the sides. 4 लोग corners पर हैं squares के और 4 लोग middle of the sides हैं. Again 4 लोग corners पर हैं. ठीक है, 2 केसेस मैं बार बार बना रहा हूं ना, आप इसको ऑब्जर्व करो. एंड 4 लोग मिडिल ऑफ द साइड्स पर हैं. एडिशनली एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. द वंस हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस आउटसाइड. जो लोग 4 कॉर्नर्स पर बैठे हैं वो लोग कहां देख रहे हैं? दे आर फेसिंग आउटसाइड. एंड द सेम आई एम आल्सो डूइंग ओवर हियर. while those who sit in middle of the sides face the center. जो लोग middle of the sides में हैं, they are facing the center. next, अब आगे बढ़ते हैं. तो अब यहां पर अगर हम आगे देखें, ये देखो, only one person sits between L and Q. L sits in middle of one of the sides. L sits in middle of one of the sides में middle of one of the side आप चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, जहां मर्जी रख दो. तो मैंने यहां रख दिया. बट अब 2 केस क्यों बना रहा हूं? बिकॉज ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड Q का मतलब L के टुवर्ड्स लेफ्ट पे भी Q हो सकता है एंड L के टुवर्ड्स राइट पर भी Q हो सकता है. ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड Q. L sits in middle of one of the sides. Now O sits third to the right of Q. Now O sits third to the right of Q. अब ये Q है तो O sits 1, 2 and third to the right यहाँ होगा. ये Q है तो O sits 1, 2 and third to the right यहाँ होगा. Now very crucial, और ये एक बहुत ही crucial information है. Both R and S are immediate neighbors of L.
Now in this case, you can obviously ensure that both R and S are immediate neighbors of L, but here it cannot be done. So this case gets ruled out, ये eliminate हो जाएगा. But then ये तो केस गलत हो जाएगा, that is fine. But यहाँ पर अगेन एक और हो सकता है केस RS और SR. RS और SR. So I need to draw one more case, but you can see that I have lack of space. Space कम है, तो मैं इसी में corrections कर देता हूँ. ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं. ओके, सो नाउ पहले तो मैं इसी का रेप्लिका ऊपर ड्रॉ कर देता हूं. तो इधर L है, ठीक है, देन इधर Q है एंड इधर O है. अभी दोनों केस एकदम सेम हो गए. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोथ R and S are immediate neighbors of L. So both R and S are immediate neighbors of L. यहां भी देखोगे both R and S are immediate neighbors of L. अब आगे देखो, कहा यह जा रहा है M sits second to the left of N. जहां कहीं भी N होगा, जहां कहीं भी उसके फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट पर M होगा. एंड सेकंड इंफॉर्मेशन इज N is neither immediate neighbor of Q nor S. N ना ही Q का नेबर है, ना ही S का नेबर है. N ना ही Q का नेबर है, ना ही S का नेबर है. दैट मीन्स N को यहां भी नहीं रख सकते, N को यहां भी नहीं रख सकते, तो N को यहां रखोगे. बट अगर आपने N को यहां रख दिया तो N के सेकंड लेफ्ट पर M, N के सेकेंड लेफ्ट पर M यहां नहीं कर पाओगे. सो दिस केस इज गॉन. अच्छा, N इज नॉट अ नेबर ऑफ Q और S. तो N इज नॉट अ नेबर ऑफ Q. आप यहां इसको नहीं रख सकते. अब आप N को दो जगह रख सकते हो, यहां पर N1 एंड यहां पर N2. बट अगेन द सेम पॉइंट, N को जहां भी रखोगे उसके सेकेंड लेफ्ट पर M को रखना पड़ेगा. तो N को यहां रखोगे तो सेकेंड लेफ्ट M कर ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए N को यहां नहीं रख सकते. एंड देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि आप N को यहां से हटाओ. N अब केवल ये होगा. एंड आपने N को ये बना दिया तो इसके सेकेंड लेफ्ट पर M हो गया. Now who is left out? LMNO, PQRS. तो LMNO, P is left out. So P, Q, R and S. Now this is the final diagram. अब एक बार जब डायग्राम बन गया, so now you have nothing much to do. अब आपको केवल देखना और उसका आंसर करना है. तो दिस इज द फाइनल डायग्राम. एंड चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. सो हियर वी गो. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जब आप आओगे तो कहा जा रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट बताओ जो बाकियों से अलग है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. सो अब देखो, L is at the middle of the side, R is at the corner, S is at the corner, O is at the corner. सब लोग कॉर्नर पर हैं except L, which is at middle of the side. तो करेक्ट आंसर नंबर है that is L. इसी तरह से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 12th वन. Who sits third to the left of Q? अब Q यहां पर है और वो इनवर्ट फेस कर रहा है, इनवर्ट. तो इसका थर्ड लेफ्ट कैसे निकालोगे? फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट. इट इज R. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज R. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज R. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. How many persons are sitting between M and S? Point to be noted. How many persons are sitting between M and S when counted from the right hand side of S? When counted from the right hand side of S, तो S और M के बीच में 1, 2, 3 and 4 persons are there. Option number D, that is 4. I hope it is very clear. तो अब आपको समझ में आ रहा है कि चीजों को हमें कैसे टारगेट करना है, कैसे उनको हैंडल करना है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग P? P के बारे में इनमें से क्या ट्रू है? तो डायग्राम देखो, P sits exactly between M and N. नहीं, this is not the case. O sits second to the right of P. No, O sits second to the left of P. Then Q is the immediate neighbor of P. Yes, Q is one of the immediate neighbors of P. So now the correct answer is option number D. Okay. Now the last sub question of this. अब क्या कह रहे हैं? अब आपसे ये बोल रहे हैं कि what is the position of P with respect to S? P की पोजीशन S से बताओ. तो S से देखोगे तो first and second to the left, which means option number C is the right answer. I hope it is very clear. तो चलिए और आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग करेंगे dual row seating arrangement. Yes, the dual row seating arrangement. Now, just read the questions very carefully. 10 people are sitting in 2 parallel rows. 10 लोग 2 parallel rows में बैठे हैं. 5 people in each row. And they are at equal distances. यानी कुछ ऐसा हो रहा है. देखो. Okay. I will
सो नाउ सी व्हाट इज टू बी डन. ये एक रो है, इसमें 5 लोग हैं. नाउ वन मोर केस आई एम मेकिंग. आपको पता है कि कम से कम 2 केस तो मैं हमेशा लेकर चलता हूं. ऑलराइट, सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली. द क्वेश्चन सेज 10 people are sitting in a row in 2 parallel rows. In row 1 ABCDE, ये row 1 और ABCDE and all of them are facing north. तो क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है. 10 लोग हैं, 5-5 करके 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं. In such a way, in row 1, ABCDE are seated not necessarily in the same order and all of them are facing north. Row 1 में ABCDE बैठे हैं, ये सब के सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं. रो 2 में M and OPQ बैठे हैं और ये सब के सब साउथ फेस कर रहे हैं. And therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of another row. Each member seated in a row faces another member of another row. ठीक है. अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने ये कहा, यहां से स्टार्ट करो. D sits third to the left of B. अब B तो इस रो में था, तो मानो B को यहां रखोगे तो D sits 1, 2 and 3rd to the left. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि B यहां हो, तो D sits 1, 2 and 3rd to the left. So these are the 2 cases which will be formed initially. D sits third to the left of B. आगे पढ़ो. The one who faces D sits second to the right of M. The one who faces D, this person, sits second to the right of M का मतलब M यहाँ होगा, first and second right. And again over here, the one who faces D sits second to the right of M मतलब M यहाँ है, इसके first and second right. Next, अब क्या कहा जा रहा है? Only one person sits between M and P. Only one person between M and P का मतलब अगर M यहाँ है तो P यहाँ होगा. ओनली 1% बिटवीन M and P का मतलब अब P 2 जगह हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. एंड ओनली 1% बिटवीन M and P का मतलब P यहाँ भी हो सकता है. दोनों सही है, दोनों सही है. बट अब ध्यान से देखिए, O and Q आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर. O and Q तो इस वाले रो में थे, एंड O and Q आर इमीडिएट नेबर्स करने का मतलब ये हुआ कि दोनों एकदम अगल बगल हैं. बट इस केस में आप O and Q को अगल बगल कर ही नहीं सकते, क्योंकि लगातार 2 प्लेसेस खाली ही नहीं है. दैट मीन्स दिस केस इज एलिमिनेटेड. ये केस एलिमिनेट हो चुका है. ये केस सही है, बट हमें इसमें भी एक पॉसिबिलिटी और लेनी पड़ेगी. एंड देयरफॉर मैं एक केस और ड्रॉ कर रहा हूं. सो नाउ सी वन मोर केस. एकदम इसका रेप्लिका भी बनाऊंगा. ठीक है, एकदम इसका रेप्लिका बनेगा. नाउ सी, अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि यहां पर B था, इसके यहां पे D था, M था. अब एक केस में P यहां ले लो, एक केस में P यहां ले लो. ओके, तो मैंने क्या कहा, एक केस में आप P को यहां ले लीजिए, ऑलराइट, और एक केस में आप P को यहां ले लीजिए. विच मीन्स एक बार P यहां हो गया, एक बार यहां हो गया. बिकॉज ओनली 1% सिट्स बिटवीन M and P था ना, तो एक बार P को यहां कर दिए, एक बार यहां कर दिए. आई होप इट इज वेरी क्लियर. नाउ द नेक्स्ट थिंग गाइस, बहुत ध्यान से देखना. क्या कहा गया? O and Q आर इमीडिएट नेबर्स and Q does not sit at any of the extreme ends. O and Q नेबर तो हैं, बट Q एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो Q को यहां रख दो, O यहां हो जाएगा. Q को यहां रख दो, O यहां हो जाएगा. अब बचा कौन? अमंग M and OPQ केवल N ही बचा, वो N इधर हो जाएगा. अब कंक्लूड कर रहे हैं इसको. The one who faces N sits to the immediate right of E. The one who faces N sits to the immediate right of E नहीं पॉसिबल है, but the one who faces N sits to the immediate right of E very much possible है. And now C is not a neighbor of E. C is not a neighbor of E का मतलब यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रखोगे. तो बचा कौन? A B C D E में से A ही तो बचा. This is the one which is left out. तो हो गया डायग्राम. और एक बार अगर डायग्राम हो गया तब तो क्वेश्चन ही हो गया. अब तो आपको केवल देखना और आंसर करना है. So this is the arrangement. OQ M and P DAE BC. OQ M and P DAE BC. Okay? So चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं. So here we go. So this is the arrangement. Who amongst the following faces O? अब who amongst the following faces O? So the one who faces O is D, and therefore the correct answer is option number A, D.
I hope it is very clear. Next, who amongst the following sits to the immediate left of the person who sits exactly in the middle of the row facing south? Exactly in the middle of the row facing south. कौन है? Exactly in the middle of the row facing south is M. It is M. And उसके immediate left पर कौन होगा? N. तो therefore answer is option D, that is N. ध्यान से समझना. Who amongst the following sits exactly in the middle of the row facing south? तो exactly in the middle of the row facing south M है और उसके immediate left पर N है. So option D, N is the right answer. Next. अब यहां पर आपसे बोला जा रहा है फाइंड द ऑड वन आउट, जो बाकियों से अलग है. तो आप देख सकते हैं कि D जो है वो एक कॉर्नर पर है, P भी कॉर्नर पर है, O भी कॉर्नर पर है, बट B जो है वो कॉर्नर पे नहीं है ना. सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर D, दैट इज B, इज द ऑड वन आउट. ओके, आगे बढ़ते हैं. एक बार क्वेश्चन हो गया ना तो आपको केवल देखना और आंसर करना है. नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग sits third to the right of the person who faces C? Third to the right of the person who faces C. So the one who faces C is this, and its 1, 2 and third right is Q. Option number C, that is Q. Point to be noted. अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, बट अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये लेफ्ट है, ये राइट है. ओके, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है. नाउ मूविंग अहेड, कमिंग टू द दिस वन. अब क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ए? ए के बारे में इनमें से क्या ट्रू है? तो पहला कहा जा रहा है ए फेसेस पी. नो, ए फेसेस पी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए. नो, बी सिट्स टू द सेकेंड राइट ऑफ ए. सी इज an immediate neighbor of A. No, C is an immediate neighbor of A is again wrong. An immediate neighbor of A faces M. An immediate neighbor of A. A का एक neighbor M को फेस कर रहा है. Yes, it's absolutely correct. Option number B. Option number B is the valid answer. All right. I hope आपको ये चीज समझ में आई हो. Then अब हम लोगों ने 4 टाइप के अरेंजमेंट कर लिए. What are the 4 types of arrangement? Circular, single row, डबल रो भी जस्ट किया एंड स्क्वायर अरेंजमेंट कर लिया. एक लास्ट कर लेते हैं, एंड दैट इज द मिसलेनियस अरेंजमेंट. ये आता है अंडर सर्कुलर. सर्कुलर के अंदर नहीं आएगा, लीनियर के अंदर नहीं आएगा, रेक्टेंगुलर के अंदर नहीं आएगा, तो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है या पेंटागन या हेक्सागन फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट है, तो वो किसके अंदर आएगा? मिसलेनियस के अंदर आएगा. सो जस्ट गो थ्रू इट. व्हाट इज द क्वेश्चन टेलिंग? 6 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल. तो एक ट्रायंगुलर टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया. एक ट्रायंगुलर टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया. 6 persons A, B, C, D, E, F are sitting around a triangular table. 3 of them are sitting at the corners. 3 लोग corners पे बैठे हैं. Okay, and 3 लोग middle of the sides पे बैठे हैं. तो यही है ना क्वेश्चन. एक ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड 6 लोग बैठे हैं, 3 कॉर्नर पे, 3 मिडिल ऑफ द साइड पर. अच्छा, अब आगे क्या कहा जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट. सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड. बट कितने फेसिंग इनसाइड, कितने फेसिंग आउटसाइड, क्लियर नहीं है. कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं. आते हैं सेकंड पैरा से. सेकंड पैराग्राफ कह रहा है दैट बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल. तो डी सिट्स एट द कॉर्नर, आप यहां पे कर लूं, बट डी इनवर्ड भी देख सकता है, आउटवर्ड भी देख सकता है, तो दोनों केसेस ले लो. एंड नाउ बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, यहां हो जाएगा. बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, यहां हो जाएगा. तो बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल. नाउ E sits to the immediate right of B who faces inside the table. B who faces inside the table, अंदर की ओर. And E sits to the immediate right of B का मतलब immediate right of B इस केस में यहां हो जाएगा, and इस केस में immediate right of B यहां हो जाएगा. Now, one person sits between E and C. One person sits between E and C. अब one person sits between E and C का मतलब C1 यहां भी हो सकता है, C2 यहां भी हो सकता है. 1 person between E and C, C1 यहां भी हो सकता है, C2 यहां भी हो सकता है. बट आप आगे की लाइन तो पढ़ो. आगे की लाइन में ये कहा जा रहा है 1 person sits between E and C, C who does not sit to the immediate left of B. C does not sit to the immediate left of B का मतलब ये वाला C नहीं हो सकता. C does not sit to the immediate left of B का मतलब ये वाला C नहीं हो सकता. ऑलराइट, तो अब केवल और केवल एक ही चीज बची है C में, और वो है जहां पर अब आपको C दिख रहा है. नेक्स्ट, मूविंग हेड, और आगे बढ़ते हैं. अब आगे ये कहा गया दैट A सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C.
इफ ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो अब अगर ए को इमीडिएट राइट करना है तो सी को आउटवर्ड फेस कराओगे तभी तो ए इमीडिएट राइट होगा। अब इस केस में इमीडिएट राइट इधर नहीं हो सकता, इधर ही होगा, तो सी को इनवर्ट फेस कराओगे तभी तो ए इज इमीडिएट राइट ऑफ सी होगा। अब बचा कौन है, ए बी सी डी ई एफ, तो ए बचा, ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई एफ, एफ बचे, तो एफ ही तो यहां आ सकता है, तो और कौन आएगा। बट इन दोनों में से कौन सा सही है, या क्या दोनों सही हैं, आइए आगे देखते हैं। तो अब कहा जा रहा है, ये देखो, E faces the same direction as D, E faces the same direction as D का मतलब अगर D इनवर्ड है तो E भी इनवर्ड है, अगर D आउटवर्ड है तो E भी आउटवर्ड है। तो E faces the same direction as D का मतलब या तो दोनों इनवर्ड या दोनों आउटवर्ड। तो E faces the same direction as D का मतलब हो गया। अब आगे ये पढ़ो, F does not sit adjacent to A, यानी F पड़ोसी नहीं है A का। अगर F पड़ोसी नहीं है A का तो this case is gone and this case is absolutely fine. And now, at last but not the least, not more than two persons sitting together face the same directions. Not more than two का मतलब maximum two persons sitting together can face the same direction. तो अब अगर ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है, तो ये इनवर्ड नहीं हो सकता, ये आउटवर्ड होगा। और अगर ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है, तो ये आउटवर्ड होगा, बिकॉज नॉट मोर देन टू पीपल सिटिंग टुगेदर फेस द सेम डायरेक्शन। डन, हो गया क्वेश्चन। तो इसमें ना कुछ रटना है, ना कुछ याद करना है, केवल और केवल जो कह रहा है वो कर दो। एंड नाउ लेट अस कम अक्रॉस द क्वेश्चंस। तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग पर्सन फेसेस आउटसाइड द टेबल। तो फेसिंग आउटसाइड कौन है, अब देखो सी है, ए है, एफ है, तो सी ए एफ, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हो जाएगा। तो एक बार कर लिया तो अपने आप चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे आते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए आउटवर्ड देख रहा है ना, तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट कौन होगा, डी। डी का मतलब ऑप्शन नंबर सी, सो नाउ दैट विल बी द आंसर। और देखो, हाउ मेनी पर्संस सिट बिटवीन डी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। जब लेफ्ट ऑफ डी से काउंट करोगे, लेफ्ट ऑफ डी, तो डी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4 होंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। सी, सच इजी क्वेश्चंस। And then, which amongst the following pair sits opposite to each other? Sits opposite. A and D not sitting opposite. B and D not sitting opposite. D and D, yes, they are sitting opposite. F and C not sitting opposite. So, D and D, option C, they are sitting opposite. All right, they are sitting opposite to each other. Therefore, it is the appropriate answer, right answer. Now, here we have to find out the odd one out. इन चार ऑप्शंस में से तीन एक जैसे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। एफ एंड बी नेबर्स हैं ना, नेबर्स हैं। ए एंड ई भी नेबर्स हैं, डी एंड एफ भी नेबर्स हैं, बट ई एंड एफ नेबर्स नहीं है, तो दिस इज द ऑड वन आउट। बाकी सब आपके सब नेबर्स हैं, ऑप्शन डी ई एंड एफ नेबर्स नहीं है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। तो हमने सारे टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट किए जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ऑलराइट, इसके बाहर, इससे डिफिकल्ट आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑलराइट, एंड नाउ एट लास्ट दिस इज द क्वेश्चन व्हिच यू विल आंसर एट द कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे करोगे एंड आई प्रॉमिस टू रिस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द कमेंट्स ओवर देयर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।